Namaskar, a very good afternoon. Every day is a wonderful and important day, but today is a very auspicious day. We are on 1st of April, and it's a particular day of Chaitra, which is on the eve of what we call Chaitra Navaratri. So we are at the cusp of the Krishna Paksha and the Shukla Paksha, and from tonight, we are moving into the most auspicious cusp, where different forces come together, where different movements come together, where different aspirations comes together and makes everything great. So today we have reached such a climax, and we have with us some of the best orators in the country. People who are not only great by what they know, but by what they do at the grassroots, at the grounded level, how they touch the life and the heart and the minds of hundreds and thousands of young population, even more across the country. And they're makers, they're movers. As Gandhiji said, you be the change that you like to see outside. So they are the change by themselves to begin with, and then they're forging and designing and constructing the change that is happening outside. And that change is Siksha, education, the change in our attitude, the change in the way we deal with others, the change in the way we look at our country, Bharat Barsha, the land of eternal civilization, the mother of all civilization, Bharat Bhumi. In the words of Swami Vivekananda, he said, when I left the country for the West, India was a great country for me. But when I came back, Bharat was Punya Bhumi, a sacred land. Every dust of the country is sacred. Every breath that's moving in the country is sacred. Every landscape is sacred. The whole country is divine. The whole country is divine, and the whole country is the guru of teaching divinity to this world. So what is this divinity? This divinity is not a magic. This divinity is actually the Vijnana, the science of interconnectedness. So I think with this introduction, it'll be a great honor to invite some of the great minds who have gathered here. It is from the Researchance Foundation, Nagpur, Sri Mukul Kanitkar ji, along with, let's give him a big hand. He's here, and he'll be coming to the stage. And I'll be requesting our director, Professor Virendra Tiwari, to accompany Mukul Kanitkar ji on stage. Sir, aiye. And I'll also request our deputy director, who's here? Okay, so I think, I'm sorry. I'll also request Dr. Rajesh Biniwalaji to come up stage and join the August fraternity. He is the Director General of the Researchance Foundation at Nagpur. And I'll also request Sri Devendra Panwarji, who is one of the very senior trustee members of the Researchance Foundation, who is making tremendous changes. And if you look at the work, if you look at the website, it's international and national, it's global and local at the same time. They're sponsoring and they're augmenting doctoral research foundation. They're making a huge campus, and they're the bridge between big institutions like IIT Kharagpur or IIT Madras and all the small organizations and institutions that's working all over the world. As the Shastras or the Upanishads say, Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya. So in the same way, we have to change the mood of today's gathering by converting the ignorance that we have into bright knowledge. But before that, I'll request the volunteers here to kindly come here and assist our director, Professor Tiwari, to grace the great people who have assembled on stage. Please. Preeti, so this is Preeti Sahani, a doctoral student from the Department of Architecture and Regional Planning. So it's our great honor to grace Mukul Kanitkar ji, one of the best orators that the country has right now. I'll request Preeti again to kindly assist the director to grace Sri Rajesh Biniwalji, and also assist him again to grace Sri Devendra Panwarji.
Swatantra, Guru Gita says, Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya, which means in through the darkness which tries to take every state to disorder and entropy, there is also already an endeavor, the bright divinity within us, which tries to research, which tries to recollect, which tries to research and recollect and also recover the lost knowledge that we had in this country for thousands and thousands of years. And what can be a better occasion than to grace and enlighten the lamp of eternal knowledge. So I'll request the volunteers to kindly come here and help the distinguished gathering, and we request them to kindly come up front and lit the lamp. May the volunteers come here, please. Requesting the esteemed dignitaries to kindly take the seat. And in the meantime, I request the volunteers to kindly come once more to grace our dignitaries with a small token of honor on behalf of IIT Kharagpur. Yes. Request Professor Tiwari to invite Mukulji into the fraternity of IIT Kharagpur, because today IIT Kharagpur has signed a memorandum of understanding with RRF. So which means Mukulji and Rajeshji, they're a part of IIT Kharagpur. We are one family. Request our director to invite Dr. Rajeshji into our fraternity. Invite Theory Sir to invite Devendra Panwarji to our fraternity. And I also request them to come once more to give a small memento which has some productions of our Indian Knowledge Systems Center of IIT Kharagpur, which has created a little bit of throb and ripple in different parts of the nation and even beyond. Because IIT Kharagpur is always a belligerent system, and we have always evolved and revolved the system. Thank you so much, sir, for inviting the three honored personalities from Resurgence Foundation, Nagpur, right into the heart and fraternity of IIT Kharagpur. Because MOUs are just simple documents. What remains for us in the months and the years to come and the decades to come is the great work, the great resurgence, the great research of researchers that we have already done in this country, and established a link between the academia, the industries, the big investments, and the common man of Bharat Barsha.
So what exactly is the intent? What exactly is the objective forward? What exactly the goals and aspirations of the two organizations are? We'll request our esteemed director, Professor Virendra Kumar Tiwari, to come and say a few words and give us a disha, a direction of what the coming months and years are going to be. Sir. Thank you, Professor Joysen. Respected Mukul Kanetkar ji, respected Rajesh Biniwal ji, Devendra ji, our Dr. Ashutosh Misra ji, Professor Sumesh Kumar, our other faculty colleagues, Professor B.N. Singh, Professor Ken Tiwari, Professor Desai, and all other friends who are here, and my dear students. I think it's a great day in the history of IIT Kharagpur. We know that about 1.5 years back, when the Government of India declared that there will be a Center of Excellence on Indian Knowledge System, I think the whole history of the whole country is now changing. Right from that time, we were asked to find out as to what is there in this jail, because even the minister when he came, सचमुच जेल है क्या? हमने उनको दिखाया, हमने कहा yes sir जेल है. और जो cells, actual cells जिसमें in which the notorious people were kept, those cells are still managed and we have preserved and we have shown them. Even the ladies' cells are also there, actual ladies' cells which were used during those periods, maybe 1928 to 31 or so. And we also know that two of our beloved persons, the freedom fighters, and in fact they were not notorious for that matter. They were intelligent people who were leading the freedom movement. Santosh Mitra and Tarkeshwar Sengupta both were shot dead in the same building in which we have started the Indian knowledge system. This particular institute, as everybody knows, that 18th of August 1951 it was started. And right from that time, the IIT system started, and therefore I always say that this is the IIT of the whole world, is the first IIT of the whole world. It is so, because the system started here, and you can see the reflections of what this IIT system has done today in the whole world. You will find many of our alumni. I don't say only IIT Kharagpur alumni, but many of our alumni of the IITs are doing so well and making a name for ourselves, and hence they are making a name for this country as well. Therefore, our responsibility have increased a lot, and being the first IIT in the chain and the start as supposed to be the mother IIT, I think we have great things to do. And you will be also happy to know that in this IIT, the first JEE was started from this IIT in 1960, and after that you can say that the first person to give something, say an alumnus wanted to give certain money and wanted that it should be in his name. And it was very difficult to do at that particular time in 1993. But the then Prime Minister, the then Director, Professor K.L. Chopra, went to the then Prime Minister P.V. Narasimha Rao. This is exactly what he told. I am quoting. I have been quoting it for long. You might have heard me earlier as well. And it is essential to quote that after hearing, P.V. Narasimha Rao took only 3 minutes, and he was given 5 minutes, but he took only 3 minutes and said, "Done, please go ahead." And the rest is history, that in other IITs, in the name of our alumni, many things have come up. And that's a great thing which was done in 1993 with this institute. So we were the first again. We are the first in various departments. I was just telling Kanetkar ji and his team that we are the first department, first institute where many uniques are there. Nobody has agriculture engineering even till today in this any of the IITs. Nobody has the architecture department we have, and this is now rated #1 in the country recently. We have the mining engineering department, of course BHU had at that time,
and then architecture, mining. Naval architecture was not there at all, and even now it is not there except in IIT Madras, which came after this. We have many other things to show today, friends. What is important is now we have to go across and show what we have. There is in Bengali there is a boissisto ache. That means there is some feeling that, well, আমি আমার কাজ করব কিন্তু আমি কাউকে বলতে যাব না. That is the thing because of which this IIT, today Beniwalji was saying that you people have lot of things. Yes, it is true, friends. Last 2 years, although I was a faculty here, but I can tell you that in last 2 years and 3 months, I can tell you, our faculty friends are doing excellent work, and the quality of work which is available with us is no less than anywhere in the world. What is important is we are not tum-tum what we are doing, and this is what the people want today. See, the quality of papers, the research publications are very high, and therefore I think the time has come where we have to spread our wings. We have to talk to many people. We are now spreading with our alumni. We had alumni meet twice this year itself, and there we had expressed that, friends, we have 70,000 alumni with us. Why not connect each one of them and say that you contribute with your might, your wisdom. We don't want money. Money will flow anyway for that matter. What is important is you are there outside. You tell us which way we are less. We have today, if you go for the ranking by citations, we are 60th in the world. By perception, we are 280 in the world. By perception, who gives the perception? Perception people who do not know IIT Kharagpur. And therefore, some of my friends, even Mukul Kanikarji, will also say that don't bother, you keep working. And I think we are not bothering. Yesterday, just 2 days back, we had our most illustrious alumni in whose name this first thing was started in the country, Vinod Gupta. And he himself said, please don't bother about this. If you give more money, they will put you rank which you want. In fact, this is exactly what he told me. So what is important is let us keep working and not bother. Yes, there is a botheration on the government's part because somebody pinches that, oh, well, you do have so many things, your alumni are across the world, but none of your universities are within 100 in the world. They pinch generally. But I can tell you that we have NIRF ranking, and through that NIRF ranking, if they are subjected, these universities, if they are subjected to NIRF ranking, because of the demography that we have in the country, I think they will not sustain, and we will be better off with them. So therefore, sometimes I have been telling ministry that why not ask them to subject to our way, the way we do NIF ranking, and let them tell us where they stand as compared to us. So friends, I think today when RF Research for Resurgent Foundation has come forward, now we are said that we are the 165th institution and the 5th IIT to have an MOU with them. We are very happy that they have come across, and with the very presence of Mukul Kanikarji and the thing which is going to tell us, we know that we are now, we got the freedom in 1947, but things, it appears we are not independent. We are not thinking in an independent way. We are still thinking in the Macaulay way. All of us are taught in the Macaulay fashion. We need to go back what was there 200 years back before Macaulay in 1827 started this and said that if anything is to be done in this country, we have to change the education system. And that's exactly what he did. What he created only the clerks. That is what he wanted. He did not, the whole system was broken. I was just going through the knowledge system ideas. The shipbuilding was the best in the world in this country, but they simply made it such that the whole art died here itself. They did not allow it. So I think many things are hidden, and with this I welcome each one of you and welcome our Kanitkarji. We are all waiting to listen to him. He will tell you more and more things, and I am sure by the end of his lecture we will be all charged, and definitely we will say that KGP ka tempo high hai. Thank you very much. Welcome, sir. Thank you so much, sir. That was very inspiring. And as I'll just pick up one thing which sir just said. No, we have attained political freedom. I am quoting Sri Aurobindo, Maharishi Aurobindo. And we are just gaining economic freedom, but we are yet to get our cultural, moral, and ethical freedom. Yeah.
That shows how much level of freedom these chairs have, the degree of freedom. That's really. No, no, no. Sir, thoda dekh lijiye. Everything is fine. So we are very sorry for this. I think it is our fault. And sir, kuch nahi hua to? Yeah. That's where the oration starts from this great soul. He remains at the spirit. And we are yet to gain the highest freedom, which is the universal, the cosmological, the spiritual freedom. But I think between Kanitkarji and our director, I need to bring a man whom I met in the morning, and I was very inspired when we took him around in the campus. And he's a person who is trained in the double soul between India and Japan. And this was a dream of Swamiji, Gurudev Rabindranath, and even Mother Mira Alfaza of Pondicherry, Mother of Pondicherry. I mean, have an Indian heart and a Japanese spirit. The Confederation of India, in the words of Acharya Abanindranath Thakur, the Confederation of Tehasin Akakura and other people of this, so that Asia rises as a collection of all the countries. And there's a force which is not allowing that, which we need to understand, the people within Asia. So I talked with this man, and he took us around instead of us taking him around. So when we went to some of the spaces, he was giving us suggestions and pointers. And he is a dedicated man of RRF, the Resurgence Foundation of Nagpur. And he has a huge experience. I'll make it very short, with a PhD from Hokkaido University, Japan, Masters of Chemical Engineering from University of Roorkee, postdoctoral work in different parts of the world. He has worked extensively with MOE, FCC, New Delhi. He has been a member of the Technical Advisory Group of United Nations Development Program, which is a consultant to the mother organizations of the United Nations Development Program. And he has worked as a fuel expert across various projects with the Asian Development Bank in Bangladesh, in other parts of Asia, and other countries that includes Japan, Germany, France, Italy, Greece, Romania, Norway, and Finland. And some of our own professors, like Professor Varshney, Shailendra Varshney from the Department of Electrical and Communication Sciences and Engineering, is a very good friend of his. And today morning, I also became his good friend. And we have a lot of plans together. So I am talking about Dr. Rajesh B. Biniwale, the Director General of Resurgence Foundation. We'd like to hear just a few words from him, why we are here today, before we go to the heart of the matter, and we are just eagerly waiting for that final speech from Mukulji. Yeah, Dr. Biniwale, let us give him a big hand. आदरणीय डायरेक्टर तिवारी जी, आदरणीय मुकुल जी, देवेंद्र जी, सामने बैठे हुए आईआईटी खड़गपुर के कई सारे शिक्षक और हमारे स्टूडेंट्स, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा काम है रिसर्च करना, तो सुबह मैं आपका जब राउंड लगा रहा था, तो जो एक पिलग्रिम करता है, when a pilgrim reaches at some places like a devotee, when he reaches somewhere, he visits a temple to temple. अपना मत्था टेकने पहुंचता है हर जगह पे, temple to temple. So that's what I did in this campus today morning. I started with different labs, went to find out what is being done into those labs. Some of things were known to me before, because this is not my first visit to IIT Kharagpur. But before that, I came here as a researcher doing some analysis on some of your material science laboratories, where we did certain analysis, we had collected some data. Such things we have done before. But this time it was different. I found IIT Kharagpur very vibrant, very looking to the course of research where it has to be. People know what they are doing. People know their positioning in the world. This is also important, because unless you know it where you are standing, it's very difficult to, actually when I traveled first time on the aircraft, the announcement was made, as usual all other announcement. One announcement was, when the oxygen level drops down, oxygen pressure drops down, there will be oxygen mask which will be ejected out from top of your head.
and pull it to yourself, put it on yourself. But the most important part of that announcement was, before helping others, please put your mask properly. And that was a cultural shock to me at that point of time, first air travel. And probably many of you have experienced this when you have traveled for the first time. It hits you. Okay, what is this here they are talking about? Without helping others, you being too so selfish that you have to help yourself first, secure your life, and then only talk. But the fact of the life is, unless you are strong, you are not going to be helpful to the others. You can't help to others unless you are standing strong. And that's what I found today in IIT Kharagpur, that IIT Kharagpur has put its oxygen masks properly. They are standing very strongly. And probably now you are ready to give the hands to the people who wants to the research, and therefore the RFRF gives you that particular platform availability which will bring into it. Second most important thing which I have visited this morning was, it was your Bharatiya knowledge system. IKS, as you call, what we call it in English, but for us it's a Bharatiya knowledge system. And everything was fantastic. Everything was fantastic because if we don't recognize, if we don't tell to the world what was existing with us, what is existing today, what are the genesis of those scientific facts, numerical numbers, whatever we have, if we don't tell with the proper proofs, with the proper confidence, then who will tell it? Outside people are not going to come and do this research. It's the one which we will be doing. And therefore, IKS Center was very, very impressive to me. Only one point which I wanted to point it out, and which I did with Professor Sen, you may find it slightly blunt, but I said, all those posters were beautiful. Everything written in the Sanskrit shlokas were written, Genesis were written, the people who have worked, our tapasvis, names, their photographs, everything was depicted. But its poster started with some or other Western philosopher's picture and their quote. I said, I want Professor Sen's, Professor Tiwari's picture over there, not those Westerners' pictures. Okay. So if that change we can bring, that authority which we bring, that would be the day when we would say that Bharatiya knowledge system has gained its footprint. And to bring it, I believe those students who are here, it's absolutely an opportunity for you. Come out of your departments. I was moving with Shailendra ji. Shailendra is a good friend of mine. And I was moving and I said, I'm not seeing the vibrant students around, because academic institutions are more known by the students. Professors are there, they will do their job, but the students who will, like what Tiwari ji has mentioned about the alumni, 76,000 plus alumni, that is what he is looking for. And you are the future alumni. This is absolutely an opportunity for you to be on the campus. Please come out of your hostels. Don't stay into the hostels. Please come out of the hostels, visit to other labs. Now the national education policy allows you to take the courses, but other than the courses also you visit the labs. What an external person like me can see in your campus, it must be seen by you, and therefore you will bear the torch which will go into the future. And that's what, whenever we say the students are the future of the country, it will become true. So RFRF provides a lot of platform to exchange the information, exchange the facilities and the expertise that's pulling up around. Today we have signed a MOU with IIT Kharagpur. This is 165th MOU which we have signed today. So this is a big platform which we have created. I invite all of you. You want to be academicians, you want to be a scientist, you want to be a philosopher, you want to be an entrepreneur, please come to RFRF. Once you are there, you will find out what is there for you and what you can contribute to the world also. It's not only what you can take, it's a both-way traffic. And for the both-way traffic, I invite all ignited minds to the RFRF. And there I stop over here because we are waiting for listening to Mukulji. Thank you very much, Tiwari ji, for giving us this opportunity. Thank you. That was very inspiring and brilliant, and we are just at the cusp, the sandikshan, and we are waiting for that discharge of inspiration and energy. And here we have
one of the best orators of the country, who has spoken across the nation, various forums, from the Diwani Khash to the Diwani Aam, at all levels, everywhere. And everywhere he has gone, he has stolen the hearts of the listeners. He has been with the Bharatiya Section Mandal since 2012 as the National Organizing Secretary. He is the Secretary of the Vivekananda International Foundation, which operates around the world. He is a member of the Madhya Pradesh State Yoga Parishad since 2007. And I think you all know, today yoga is the largest intangible following in the world, recognized by the United Nations and the UNESCO since 2017 onwards. And I think we also know there's more yoga which is practiced beyond India than we practiced in India. So it's coming the other way. Ghoom ke aata hai, phir ke aata hai. That's the way. And he has conducted more than 3,000 workshops across the nation and beyond, a visiting faculty to the management department of Maharaja Sajirao University at Baroda. That's the place where Sri Aurobindo started his career. And the beginning of the Anushanal Shamiti Barin Ghosh comes, and everything starts from there. And he's the author of so many books, I cannot read it. And I think you should read his book, one book you must read, which accidentally, I should say, read, that is Essential Vivekananda, which is in English, written by Sir. And he has books in Marathi, he has books in Punjabi, he has books in Gujarati, he has books in Hindi. That shows the level of national penetration which an orator, a philosopher, an educator, a philanthropist, a maker, a mover, and a grounded person who makes the change outside after he has changed himself. So welcome, sir. Welcome, Sri Mukul Kanitkarji. Let's give him a very, very big hand. Sir. You can start the slides. इस आईआईटी खड़गपुर के आदरणीय निदेशक आचार्य तिवारी जी, रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के महानिदेशक आचार्य राजेश बिनीवाले जी, देवेंद्र पवार जी, और जो अत्यंत प्रेरणादायी विचारों को हमारे बीच में रखते हुए इसका सूत्र संचालन कर रहे ऐसे प्राध्यापक सेन जी, यहाँ उपस्थित आईआईटी खड़गपुर के आचार्यगण, प्राध्यापकगण और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, स्वाधीनता को 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस देश में स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाने की बात की गई। 75 वर्ष पूर्ण होने के लिए महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किया जाता है, अमृत महोत्सव, दैट यू हैव गॉट इटर्निटी नाउ, इमॉर्टैलिटी। 75 years have crossed, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है और अमृतत्व की ओर जा रहे हैं, इसलिए अमृत महोत्सव कहते हैं। 1947 में ये देश स्वाधीन हुआ और तब से लेकर 2022 में आज हम बैठे हैं तो 75 वर्ष पूर्ण हुए, इसलिए देश ने तय किया कि हम इसको मनाएंगे। 50 वर्ष पूर्ण हुए थे तब भी मनाया गया था, 75 वर्ष पूर्ण हुए तब भी मनाया जा रहा है। आज उत्सव मनाने के कारण बहुत है। देश जिस गति से प्रगति कर रहा है और जिस प्रकार से विश्व में उसका मान बढ़ रहा है, अभी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और वहाँ दिल्ली में बैठ करके यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति बनाने के लिए प्रयत्न भारत कर रहा है। भारत विश्व का नेतृत्व करने के अपने नियति को, जिसका कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 में 1897 में भविष्यवाणी की थी, वह हमारी आँखों के सामने सार्थक होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है और उस कारण से ये अमृत महोत्सव और अधिक उत्साह से मनाया जा रहा है। देश के सभी शिक्षा संस्थानों में इसे मना रहे हैं, लेकिन इसको मनाने के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्हाई शुड वी सेलिब्रेट? जस्ट पासिंग ऑफ टाइम, 75 years हैव पास्ड। हमने कुछ भी नहीं किया होता तो भी 75 वर्ष चले जाते हैं। हमारे साथ में जो देश स्वतंत्र हुए उनके भी 75 वर्ष पूर्ण हो गए। सो just passing of the time is not a cause of celebration. It is a cause of introspection. It is a cause of evaluation. क्या खोया, क्या पाया, इसका मूल्यांकन करने का यह समय होता है। And the real celebration
सच्चा उत्सव, वास्तविक उत्सव भारत में इसी बात के लिए होता है। अभी कल, आने वाला कल, टुमारो, विल बी सेलिब्रेटिंग द भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष, वर्ष प्रतिपदा, उगादि, गुड़ी पाड़वा, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन डिफरेंट नेम्स। उत्सव मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? वन ऑफ द रीजंस फॉर सेलिब्रेशंस, ऑल काइंड्स ऑफ सेलिब्रेशन। और भारत तो इतना उत्सव प्रिय देश है कि हम सारे उत्सव मनाते हैं। हमारे अपने कम पड़ते हैं तो विदेशियों के भी लेकर के मना देते हैं। 14 फरवरी भी उतना ही धूमधाम से मनाते हैं। So because we are at heart celebrators, we like celebrations, we celebrate almost everything. तो इसलिए हर छोटी सी बात को भी हम मनाते हैं, बड़ा उत्साह के साथ मनाते हैं। जहाँ उत्साह होता है उसे उत्सव कहते हैं। उत्स शब्द से ही उत्साह बना, उत्स शब्द से ही उत्सव बना, और दोनों का अर्थ है ऊपर उठना। उत मतलब ऊपर उठना, ऊपर उठने के लिए उत्सव मनाया जाता है। दिस अमृतोत्सव, दिस 75 years of independence is also to go beyond by introspection, by knowing what we have gained and what we have not. And hence, I have titled today's talk as Swadhinata se Swatantrata. What is the goal? What is the way ahead? Not just looking back, but what is the goal where we have to go? Normally we consider that these are synonyms. हिंदी में या भारतीय भाषाओं में स्वाधीनता और स्वतंत्रता एक दूसरे के समानार्थी करके प्रयोग कर लेते हैं। But no, when you go to the Sanskrit roots of any word, there are no synonyms in Sanskrit. संस्कृत में पर्यायवाची नहीं होते। संस्कृत में दो शब्दों के विशिष्ट, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर अर्थ होते हैं, और पद के अर्थ को संस्कृत में पदार्थ कहते हैं। हम पदार्थ कहते हैं किसी वस्तु को, वस्तु भी न्याय शास्त्र में किसी कंसेप्ट को कहते हैं। संस्कृत इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वेरी मैथमेटिकल लैंग्वेज, वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज, वेरी लॉजिकल लैंग्वेज, एंड वंस यू गो इनटू दैट, आपको इतना आनंद आने लगता है, आप संस्कृत में नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आप अपने स्वयं शब्दों की रचना कर सकते हैं यदि आपके मन में संकल्पना हो तो। और इसलिए मैंने ये संकल्पना को यहाँ सामने रखा कि स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर, ये दो शब्द समानार्थी लगते लेकिन है नहीं समानार्थी, क्योंकि हमने जो स्वाधीनता पाई वो ऐसे ही नहीं पाई है। इट हैज नॉट कम विदाउट कॉस्ट, बट डू वी रियली रिमेंबर द कॉस्ट? जिस स्वतंत्रता को, जिस स्वाधीनता को, जिस अपने उन्मुक्तता का हम अनुभव प्रतिदिन करते, द इंडिपेंडेंस दैट वी every day use, the word freedom we every day use, that freedom that we have got to do certain things independently without anybody else stopping us, उसका कितना बड़ा मूल्य हमारे पूर्व लोगों ने दिया है। and we don't know their names also, many of them are unsung. अभी खड़गपुर के जो दो लोगों के नाम आपने बताए, हम में से कितने लोगों को पता था कि जिस वास्तु में, जिस परिसर में आप घूम रहे हो, यहाँ पर दो लोगों ने बलिदान किया था, और वो इतने महत्वपूर्ण थे कि उनके अंतिम क्रिया के लिए, उनके शव प्राप्त करने के लिए स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़गपुर में इसी आपके बैराक में आए थे, जहाँ पर आज आप भारतीय ज्ञान परंपरा को और केंद्र बनाए हुए बैठे। ऐसे अनेक अनाम वीरों ने, कईयों के तो नाम नहीं पता, इन दोनों के तो मित्र और उनके नाम तो हमको पता चल गए, लेकिन देर आर मेनी हुज मार्टरडम हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। उनके बलिदान का कोई हमारे पास में पता नहीं। और जिस दिन स्वातंत्र्य मिला था, 15 अगस्त 1947 को, जब यूनियन जैक नीचे उतर रहा था और भारत का तिरंगा लाल किले पर फहराया जा रहा था, उस समय हमारे लाखों भाई बहन और सीमा पार करते हुए अपने जीवन का संघर्ष कर रहे थे। दे वर फाइटिंग फॉर देयर लाइफ, दे आर फाइटिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस, दे वर फाइटिंग अपनी इज्जत के लिए, अपने आबरू के लिए, अपने शील के लिए, अपने सत्व को बचाने के लिए। यहाँ जहां हम बैठे उस बंगाल में डायरेक्ट एक्शन यहाँ शुरू हुआ था। सोहरावर्दी ने जो डायरेक्ट एक्शन शुरू किया था, स्वयं महात्मा गांधी नवाखाली में आकर के बैठे थे। किस प्रकार उस समय स्वातंत्र्य का एक तरफ उत्सव मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ हमारे भाई बहन अपने जीवन को बचाने के लिए विभाजन की विभीषिका को झेल रहे थे। वी शुड नॉट फॉरगेट सच थिंग्स। द नेशन दैट फॉरगेट्स द एट्रोसिटीज दैट हैज हैपेंड ऑन
their ancestors is bound to repeat them. यदि हम एक राष्ट्र के रूप में उसका स्मरण नहीं करेंगे तो फिर से वही होगा. इसलिए 1947 को स्मरण नहीं रखा, इसलिए 1990 की 19 जनवरी का आप कश्मीर फाइल्स के रूप में हम उसको देख रहे हैं. फिर दोहराया गया, फिर दोहराया गया, फिर दोहराया गया, बार बार दोहराया जाता है. क्यों दोहराया जाता है? क्योंकि हम उसका स्मरण नहीं करते. इसलिए स्वाधीनता का उत्सव मनाते समय इसका भी प्रतिवर्ष स्मरण करना चाहिए. जब तिरंगा लहरा रहा था और जब स्वतंत्रता के गीत दिल्ली में और पूरे भारत में गाए जा रहे थे, उसी समय हमारी सीमाएं रक्त से रंजित हो रही थी. इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई दिस स्वाधीनता, दिस इंडिपेंडेंस हैज नॉट कम एक्सीडेंटली. ऐसे ही नहीं आया है, अनेक बलिदानों से आया है. इसका स्मरण करने का यह अमृत महोत्सव का वर्ष का समय है. और उसी के साथ साथ यह भी स्मरण करना है कि ये अर्थ क्या है इन शब्दों का. हम आजादी शब्द का प्रयोग करते हैं, हम स्वाधीनता शब्द का प्रयोग करते हैं, हम फ्रीडम या इंडिपेंडेंस शब्द का अलग अलग. उर्दू में आजादी कहते हैं. आजादी का भी अर्थ यही है, ज्यादतियों से मुक्ति पाना, इजाद पाना ज्यादतियों से. इसी को आजाद. जब कोई और मुझ पर ज्यादती ना कर सके, जब कोई और मुझ पर नियंत्रण ना कर सके, नोबडी कैन कंट्रोल मी, आई एम द मास्टर ऑफ माई सेल्फ. यह आजादी का अर्थ होता है. और यही अर्थ होता है स्वाधीनता का, और यही अर्थ होता है का इंडिपेंडेंस का. डिपेंडेंस नहीं है. बट ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली निगेटिव कनोटेशंस. किसी और की पराधीनता से हम स्व के अधीन हो गए, केवल इतना ही है. किंतु स्वतंत्र का अर्थ अलग है. स्वतंत्रता का अर्थ है स्व को खोजना और उसका तंत्र विकसित करना. टू रियलाइज योर ओन सेल्फ आइडेंटिटी. हम सब जीवन जी रहे हैं, वह जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? किस लिए मैं आया हूं? कस्त्वम को हम कुत आयात कामे जननी को में तात इति परिभावय नित्य विचारम. शंकराचार्य कह रहे हैं, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, हु एम आई? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? या हमारे युवा साथी बैठे हैं, ये युवा साथी प्रतिदिन सर्वाधिक बार करते कोई काम करते होंगे तो वो काम करते हैं शीशा देखने का, दर्पण देखने का, मिरर देखने का. क्योंकि युवावस्था में देखने लायक होता है, कुछ सालों बाद कुछ देखने लायक रहेगा नहीं, तब दर्पण कम देखेंगे. या तो उड़ जाएंगे या सफेद हो जाएंगे, फिर नहीं देखता कोई दर्पण. जब होते हैं तब, अभी तो सब ऐसा सब जगह पर जहां दर्पण दिख जाए वहां देखते हैं. वो टू व्हीलर पर जो दो लगे होते हैं ना, तो मुझे कई बार जब हमारी बहनों को मैं देखता हूं, अभी कोविड के कारण मास्क पहन रही है, नहीं तो फिर आतंकवादी बन करके जब घूमती है, तो टू व्हीलर पे उतरने के बाद में जब सारा तामझाम खोलती है तो उसके बाद में वो शीशे लगे होते हैं. तो मुझे लगता है ये ट्रांसपोर्ट वाले, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले होंगे तो कंफर्म करें, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए वो मिरर लगाए होते हैं या उतरने के बाद चेहरा देखने के लिए लगाए होते हैं? बार बार हम अपना चेहरा देखते हैं शीशे में, लेकिन किस लिए देखते हैं भाई? व्हाट इज, व्हाई डू यू लुक इनटू द मिरर? व्हाट इज द क्वेश्चन दैट यू आस्क? उस मिरर में देख करके, उस शीशे में देख करके, दर्पण में देख करके युवा अपने आप से पूछता है, सब ठीक तो है? ये सब बाल वाल सब चेहरा वेरा ठीक तो है? बाहर का देखने की जगह अंदर का ठीक तो है देखने लगेंगे तो कितना परिवर्तन हो जाएगा. उस मिरर से, उस शीशे से देखने वाली आंखें आपसे प्रश्न पूछती है, हु आर यू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? ये है स्व से साक्षात्कार. एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड योर ओन आइडेंटिटी, इसलिए बिनीवाले सर ने बार बार कहा कि आईकेएस नहीं, हम बीकेएस कहते हैं, भारतीय नॉलेज सिस्टम. व्हाई? It is not just the translation that we are talking about. The first article of the Constitution, हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है, India that is भारत. संविधानकर्ताओं में वाद विवाद हुआ. There is a debate, and there are 12 volumes in which that debate is documented. Each word of the debate was documented of the Constituent Assembly. और उस Constituent Assembly debate में आर्टिकल 1 के ऊपर इतना विवाद हुआ है, इस देश का नाम क्या होना चाहिए? हिंदुस्तान होना चाहिए कि भारत होना चाहिए कि इंडिया होना चाहिए? और इसके ऊपर विवाद हुआ. और हमारे संविधानकर्ताओं ने समस्या सुलझाई नहीं, भ्रम को बनाए रखा. और वह भ्रम हम साथ में लेकर के आज भी चल रहे हैं. दुनिया में बहुत कम देश ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ये भ्रम को, नेदरलैंड्स ने सुलझा लिया, पहले हॉलैंड था, फिर नेदरलैंड. नहीं, अभी रुको मैं बताता हूँ. नेदरलैंड, हॉलैंड और नेदरलैंड का गड़बड़ चलता था, अब उन्होंने नेदरलैंड स्वीकार कर लिया. हमारे पड़ोस में बर्मा है, उसने म्यांमार स्वीकार लिया.
श्रीलंका ने अपना नाम सीलोन से बदल करके श्रीलंका कर लिया, हमने नहीं किया, क्योंकि ये रियलाइजेशन, वी हैव नॉट फेस्ड आवरसेल्व्स। 75 वर्ष हो गए लेकिन हमने स्व को नहीं अभी तक पहचाना, अपनी चिति को नहीं पहचाना, एक राष्ट्र के रूप में हु एम आई, भारत का अर्थ क्या है, भारत का बोध क्या है, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय भारत। इसलिए भारत शब्द जब हम कहते हैं तब हम केवल भूगोल की बात नहीं कर रहे होते, हम संस्कारों की और संस्कृति की बात कर रहे होते। और जब हम इंडिया कह रहे होते तो इंडस से इंडिया बना, सिंधु से बना, सिंधु को अंग्रेज इंडस कहते थे, इंडस से इंडिया बना। जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते तब हम केवल भूगोल की बात कर रहे होते हैं, और जब भारतीय नॉलेज सिस्टम कहते तब हम उन समस्त लोगों की बात करते हैं जो भा में रहते हैं, जो प्रकाश की साधना करते हैं, जो दीप प्रज्वलित करते हैं, जो अपने जन्मदिन पे मोमबत्ती नहीं बुझाते अपितु दीप जलाते हैं। वो प्रकाश की पूजा करने वाले हर व्यक्ति का नाम भारत है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा इज नॉट जस्ट जियोग्राफिकल, इट इज मोर देन दैट, इट इज कल्चरल, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट भारतीय नॉलेज सिस्टम। पर 75 वर्षों के बाद भी आज हम अपने आप को फेस नहीं कर पाए, आज भी हम तय नहीं कर पाए वंदे मातरम होगा कि जनगण मन होगा। आज भी हमने, दुनिया में एक ही देश होगा जिसमें नेशनल एंथम भी है और नेशनल सॉन्ग भी है। सो द कन्फ्यूजन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल कंटिन्यू आफ्टर 75 ईयर्स। क्यों? क्योंकि स्वाधीनता तो आ गई, स्वतंत्रता नहीं आई। हम स्वाधीन हो गए किंतु स्वतंत्र हुए। दैट इज द क्वेश्चन वी हैव टू पॉन्डर दिस होल ईयर। यह हमारा संविधान का ओरिजिनल प्रियम्बल है। हम भारतवासी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a democratic, sovereign democratic republic, give unto ourselves this constitution. हम भारतवासी अपने आप को ये संविधान देते हैं। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को साइन हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान ने भारत को, जो आज हमारा लोकतांत्रिक सार्वभौम भारत है, उस सार्वभौम भारत का गठन किया। किसने किया? वो संविधान का प्रियम्बल कहता है हम भारतवासी, ये स्वाधीनता है। अब कोई और इंग्लैंड में बैठा हुआ प्रीवी काउंसिल या कोई वहां का कैबिनेट या वहां का कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट या वहां का कोई वाइसराय आज हमको नहीं देगा कि तुम्हारा हमारे अधीन, और हम आपको 47 से लेकर 1950 तक ऐसे अनेक पत्र हैं जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड के वाइसराय को लिखे, इंग्लैंड के जनरल को लिखे और उनको परमिशन मांगी, छोटी छोटी बातों की परमिशन मांगी, क्योंकि उस समय ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, पावर ट्रांसफर हो रहा था, स्व के अधीन नहीं हुए थे। 1950 में यह प्रियम्बल आया 26 जनवरी को, एंड वी बिकेम आवर ओन, तब सच्चे अर्थ में स्वाधीन हुए। वो 2.5 वर्ष जो है 1947 टू 1950, दैट इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। 1950 में हम स्व के सच्चे अर्थ में अधीन हो गए, किंतु अभी भी बाकी है हमारे स्व का मैनिफेस्टेशन, स्व का एक्सप्रेशन, स्व का प्रस्फुटन, स्व का प्रगटीकरण। भारत की हजारों हजार वर्ष की सुप्त इच्छा शक्ति का प्रकटन आज भी बाकी है, क्योंकि हमने अपने तंत्र में अपने उस स्वयं को अभी गढ़ा नहीं है, वह स्व का तंत्र हमने अभी बनाया नहीं। इसलिए मैंने विषय रखा स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर। नेक्स्ट, यह स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर जाने की जो यात्रा है, इस यात्रा के लिए हमको समझना पड़ेगा कि वास्तविकता में बदला क्या और क्या अभी बाकी है। बाकी है या बाकी रखा गया हमारे लिए? 4 पीढ़ियों ने अभी भी हमारे लिए बाकी रख दिया कि ये वो नहीं बदला। शासक बदल गए, शासन बदल गया। कई लोग कहते हैं गोरे अंग्रेज चले गए, उनकी जगह काले अंग्रेज आए। मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मानने से तो मैकॉले को हम क्लीन चिट दे देंगे। मैकॉले ने जो माना था वो पूरा हो गया। मैकॉले कहता ही था ये लोग दिखने से, बाहर से तो केवल भारतीय रह जाएंगे, किंतु मन बुद्धि से और अपने आत्मा से, उसने शब्द प्रयोग किया बाय सोल, दे विल ऑल बिकम इंग्लिश, दे विल ऑल बिकम ब्रिटिश। अंदर से अंग्रेज बन जाएंगे। ये काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज की जगह पर आ गए और हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। द एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू, द लूट कंटिन्यूज। इस प्रकार का भाव यदि हमारे मन में 75 वर्षों के बाद भी जगता है तो अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए व्हाई? क्योंकि शासन बदल गया, शासक बदल गए, ध्वज बदल गया, यूनियन जैक उतरता हुआ। और ये तिरंगा, ये 15 अगस्त 1947 का ही फोटो है, जिस समय यह तिरंगा लाल किले पर फहराया जा रहा था। गांधी जी नौखाली में बैठे थे,
अरविंद घोष पौंडीचेरी में बैठे थे, 15 अगस्त की शाम को ही पौंडीचेरी आकाशवाणी से, ऑल इंडिया रेडियो से उनका भाषण हुआ, और उस भाषण में 15 अगस्त 1947 को महर्षि अरविंद ने स्वतंत्र भारत के सामने 3 लक्ष्य रखे। विश्व के नेतृत्व का लक्ष्य रखा, विश्व के गुरु बनने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा भारत की डेस्टिनी है, इट इज द डेस्टिनी, भारत की यह नियति है कि जिस नियति के अनुसार भारत विश्व गुरु बनेगा। और इसलिए जब 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और जब घोषणा हुई और जब उसका पीडीएफ शाम के समय नेट पर गया, मैंने डाउनलोड करके रात को पढ़ा, फिर सुबह उठ करके पढ़ा, और उस सारी बात में सबसे ज़्यादा मुझे यदि कोई बात लगी, अंग्रेजी में 66 पृष्ठों में लिखे हुए डॉक्यूमेंट में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उस डॉक्यूमेंट में एक शब्द जो चारों तरफ से गूंज करके कानों में आता है, जो भारत के सेल्फ एक्सप्रेशन पिछली स्लाइड में मैंने जो कहा था उसको यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिखाती है, वह है 11.8 शायद, जिसमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की है। उसमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का लक्ष्य अंग्रेजी में लिखे हुए डॉक्यूमेंट में 75 वर्षों में पहली बार किसी सरकारी दस्तावेज में, सरकारी डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि व्हाई इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्योंकि भारत की नियति है विश्व गुरु बनना, और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अंग्रेजी में गाइड ऑफ द वर्ल्ड वगैरह कुछ नहीं ट्रांसलेशन किया, विश्व गुरु अंग्रेजी में लिखा है, VISHWA, ऐसे विश्व गुरु, GURU, ऐसे विश्व गुरु लिखा है, नेशनल। यही लक्ष्य दिया था अरविंद ने, लेकिन आज हुआ नहीं। आज राजतंत्र, हम वही वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं पॉलिटिकल साइंस वाले लोग। आज जिस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम चला रहे हैं, आज जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो सिस्टम हम चला रहे हैं, वो इंग्लैंड में नहीं है। इंग्लैंड में रॉयल सिविल सर्विस खत्म कर दी उन्होंने। रॉयल सिविल सर्विस है, लेकिन सेक्रेटरी नहीं होता ICS। जैसे भारत में ICS सेक्रेटरी होता है, वहां रॉयल सिविल सर्विसेज का RCS का अधिकारी, मतलब IAS जैसा जो ब्रिटिश में होता है, रहने दीजिए, पानी मत डालिए, उसको बुझाना है तो पुष्प का उपयोग कीजिए, पुष्प से बुझ जाएगा। चलिए, तो राजतंत्र नहीं बदला, न्यायतंत्र नहीं बदला। मैंने लॉ पढ़ाई की, यहां पर भी आपका लॉ डिपार्टमेंट है, मैंने 5 साल का LLB किया, और हमारे सारे कानून जो हम पढ़ते थे, IPC पढ़ते थे तो वो IPC 1958 का, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते थे तो इनकम टैक्स एक्ट जिससे आपका इनकम टैक्स कटता है 30% प्रोफेसर लोगों का, वो इनकम टैक्स एक्ट 1862 का है, उस समय से चला आ रहा है। हम सारा न्यायतंत्र, ब्रिटिशों का न्यायतंत्र, अभी 2-4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माय लॉर्ड बोलने की आवश्यकता नहीं है, तब तक माय लॉर्ड कहते थे। भारत जैसी गर्मी में काला कोट पहन करके बेचारा वकील जाता है आज भी, और वो चोगा भी पहनना पड़ता है। पहले तो वो बाल भी पहनने पड़ते थे सफेद वाले जजेस को, गर्मी में मर जाते थे। लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हुए, स्वाधीन हो गए, इसलिए न्यायतंत्र नहीं बदला, हमारा राजतंत्र नहीं बदला, न्यायतंत्र नहीं बदला, इकोनॉमी नहीं बदली, अर्थतंत्र नहीं बदला। सारे विश्व को 40% से अधिक GDP का योगदान करने वाला भारत 15वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी तक 1/3 ऑफ द GDP ऑफ द वर्ल्ड वाज प्रोड्यूस्ड इन दिस कंट्री। 19th सेंचुरी 1835 में मैकॉले के आने से पहले तक हम दुनिया में 23% कंट्रीब्यूशन करते थे इकोनॉमी में। उसके वो इकोनॉमी हमने नहीं लागू की, हमने वही पश्चिम की इकोनॉमी आज भी चल रही जो अंग्रेजों की। इसलिए मैं कई बार पूछता हूं, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है, क्या कलेक्ट करता है भाई वो? व्हाट इज ही कलेक्टिंग? अंग्रेजों के लिए लगान कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर होता था, फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। स्वाधीन हो गए, लेकिन स्व का तंत्र नहीं आया, इसलिए वो जिले का सेवक नहीं है। जो चुन करके आता है उसको नगर सेवक कहते हैं, लेकिन जो नौकर है, पब्लिक सर्वेंट, UPSC का फुल फॉर्म यही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो पब्लिक सर्वेंट है उसको हम जिलाधीश कहते हैं हिंदी में, वो अधीश हो गया, उसके अधीन है हम। आज भी वही तंत्र चल रहा है, अर्थतंत्र वही चल रहा है, राजतंत्र वही चल रहा है। और इस कारण से हमारा जो स्वावलंबी समाज था, वो स्वावलंबी समाज 75 वर्षों में हमने भीखमंगा बना दिया। आज समाज भीख मांगता है, आज हम फ्रीबीज मांगते हैं।
इस देश में समाज पोषण करता था। अभी एल्यूमिनियस की बात करते थे। जब मैंने अंग्रेजों का एजुकेशनल सर्वे देखा कि 1823 में भारत 100% लिटरेट था, 7 लाख गांवों में समृद्ध शिक्षा व्यवस्था 1823 में थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम सतयुग और द्वापर युग, त्रेता युग। 1823 में इस देश में 7 लाख गांवों में समृद्ध गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी। ईच वन, सारे स्त्री पुरुषों को शिक्षा देने की व्यवस्था थी। 100% लिटरेसी। विलियम एडम्स ने यहाँ का, बंगाल का, कोलकाता प्रेसिडेंसी का सर्वेक्षण किया था। थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वेक्षण किया था। विलियम बेल ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी का किया था। विलियम लिटनर ने पंजाब प्रोविंस का किया था। एंड ऑल दिस ब्रिटिशर्स केम टू द कंक्लूजन दैट everybody in this country was getting education in 1823. सारी जातियों के, सारे स्त्री पुरुष, सारे वर्ण, सारी जाति के, अंग्रेजों के उस सर्वेक्षण में टेबल्स दिए। कितने ब्राह्मण शिक्षक थे, कितने क्षत्रिय शिक्षक थे, कितने वैश्य शिक्षक थे, कितने शूद्र शिक्षक थे, कितने विद्यार्थी थे, और सारे भारत में सारी जातियों को पढ़ाया जाता था। मेरे को आश्चर्य लगा, 1823 में तो हमारे पास कोई राजतंत्र नहीं था, हमारा अपनी कोई राजकीय व्यवस्था नहीं थी, हमारे अपने राजा नहीं थे। फिर 1823 में 7 लाख गुरुकुलों का परिपोषण कौन करता था? और जब मैंने उसके अंदर रिसर्च किया, गुरुकुल प्रकल्प के अंदर जब हम काम कर रहे थे, तो मुझे आश्चर्य हुआ, ये देश समाजतंत्र कितना स्वावलंबी था, कितना समाज पोषित था, कि ये सारे के सारे 7 लाख गुरुकुल कौन चलाता था? समाज चलाता था, राजा नहीं चलाता था, राजकीय अनुदान पे नहीं चलता था। और कौन चलाता था? एल्यूमिनी चलाता था। क्योंकि भारत में अनादिकाल से परंपरा है गुरु दक्षिणा की, और गुरु दक्षिणा केवल पढ़ाई करने के बाद देने की गुरु दक्षिणा नहीं है, जो हम पुराणों में कथाएं सुनते हैं कि परीक्षा पूरी हो गई, गुरु ने पूछा क्या गुरु दक्षिणा चाहिए, गुरु को पूछा, गुरु ने कहा, वो दक्षिणा दी। केवल इतना ही नहीं, आजीवन अपने कमाई का दशांश 10% ऑफ योर इनकम, प्रत्येक गृहस्थ को अपनी कमाई का 10% अपने गुरु को भेजा जाता था। ये अनादिकाल से परंपरा चली आई, 1823 तक ये परंपरा थी। अब आप सोचिए, आपके 70,000 एल्यूमिनी, उनके इनकम का 10% IIT खड़गपुर को देने लग जाए, तो किसी अनुदान की, किसी ग्रांट की जरूरत है क्या सरकार से? ये भारत का समाज था, ये देना होता था। हमने शुरू किया, हमने भारतीय शिक्षण मंडल में शुरू किया, हम अपने कार्यकर्ताओं को कहते अपना 10% दीजिए, अपने विद्यालय को, अपने महाविद्यालय को आवश्यकता नहीं है उसका सरकारीकरण हो गया, कोई बात नहीं, आप शिक्षण मंडल को दीजिए, हम नए गुरुकुल खोलेंगे, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही उनको शिक्षा देंगे। बट दिस हैज टू कम बैक। समाज तंत्र हमारा अधीन, ये 5 तंत्र अधीन हो गए, उपासना का तंत्र अधीन हो गया, मत पंथ का तंत्र अधीन हो गया। आज कितने मंदिर सरकारी कब्जे में है? आज पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1600 केसेस लगी हुई है, जो मंदिरों पे से सरकार का कब्जा हटाने के लिए लगे। साई दीपक उसको लड़ रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी उसको लड़ रहे हैं, सारा मत पंथ का तंत्र उसको कब्जा कर लिया गया। ये सारे के सारे 5 तंत्र अधीन हुए, और इन 5 तंत्रों के अधीन होने के कारण अभी 75 वर्ष के बाद स्वतंत्र नहीं बने, हम स्वाधीन हो गए पर स्वतंत्र नहीं बने। इसलिए इसको हमको समझना पड़ेगा कि क्या भारत की स्थिति थी। नेक्स्ट, इन 5 तंत्रों के अधीन होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, जो कोई आक्रांता इस देश में नहीं कर पाए, शक, हूण, कुषाण से लेकर न जाने कितने लोग आए, गुलाम वंश के लोग आए, ग्रीक आए, रोमन आए, कितने लोगों ने भारत पर आक्रमण किए, लेकिन भारत को दास नहीं बना पाए। जो अंग्रेजों ने सबसे बड़ा काम किया, वो काम किया कि हमारे शिक्षा तंत्र को अधीन कर लिया। 1835 का एक्ट जो बना, इंडियन एजुकेशन एक्ट, उस 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट में ये लिख दिया गया कि सरकार की अनुमति के बिना आप अपने घर में भी किसी को नहीं पढ़ा सकते। आपको अध्ययन अध्यापन करवाना है तो सरकार की अनुमति, एफिलिएशन लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। और फिर सरकार ने परमिशन देना बंद कर दिया। सरकार ने केवल कुछ चुनिंदा लोगों को, जो अंग्रेजों के दास बन सकते, उन्हीं को पढ़ाई करवाना शुरू किया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी नाम की थ्योरी लगाई गई, और उस कारण जो 100% भारत 1823 में 100% साक्षर था, वो 1947 में 18% रह गया। 82% भारत को निरक्षर करने का काम अंग्रेजों ने किया। और उसने लिखा ही था, ये मैकॉले का शब्द है, कि हम ऐसा एक क्लास तैयार करना चाहते हैं जो अंग्रेजों का भक्त हो। और हमारा दुर्भाग्य कि स्वाधीनता के 75 वर्षों के बाद में
मैकॉले सक्सेसफुल हो गया। स्वाधीनता के समय था कि नहीं था पता नहीं। आज मैं जब ट्रेन में प्रवास करता हूं तब यंग माता पिता को देखता हूं जो अपने बच्चों के साथ बात कर रहे होते तो अंग्रेजी में बात कर रहे होते और गर्व से कहते हैं कि मेरे बेटे को मेरी मातृभाषा नहीं आती, बंगाली नहीं आती, मराठी नहीं आती, हिंदी नहीं आती। इस बात पर माता पिता गर्व करते हैं। यही तो मैकॉले ने कहा था, ऐसा भारत बना दूंगा 75 वर्षों के बाद। इसलिए जब तक माइंड कॉलोनाइज रहेगा, जब तक शिक्षा तंत्र स्वतंत्र नहीं हो जाता, भारत का सेल्फ जब तक शिक्षा तंत्र में एक्सप्रेस नहीं होता, तब तक बाकी के पांचों तंत्र बदलना मुश्किल है। तब तक राजतंत्र नहीं बदल सकता, अर्थतंत्र नहीं बदल सकता। इसलिए इन पांचों को बदलने के लिए दास मन को बाहर निकालना पड़ेगा। दिस कॉलोनाइज्ड माइंड हैज टू बी liberated and that can be liberated through education and that is the purpose of national education policy. Next, एक छोटे से में हम देख लेते कि है इस तंत्र के अंग्रेजों के अधीन होने से क्या क्या नुकसान हुआ। राजतंत्र के अधीन होने से हमने हमारा जो रियल डेमोक्रेसी थी वो समाप्त हो गई। इस देश में राजतंत्र के अंदर भी डेमोक्रेसी थी। प्रजा की इच्छा से प्रजा की इच्छा का पालन करना ये राजा का धर्म था। आप चाणक्य को पढ़ लीजिए, आप शिवाजी को पढ़ लीजिए। शिवाजी ने पूरा का पूरा अनुसंधान कराया था राज्याभिषेक होने से पहले। 26 बुक्स वेर रिटन फॉर 2 years, लॉट ऑफ रिसर्च वाज बीइंग डन, क्योंकि शिवाजी केवल सत्ता परिवर्तन, केवल पावर एक्सचेंज नहीं करना चाहते थे। शिवाजी सच्चे अर्थ में भारतीय तंत्र का विकास करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने टैक्सेशन के ऊपर रिसर्च करा। उन्होंने कैबिनेट कैसी होनी चाहिए, उस समय पहली बार चाणक्य नीति का रेफरेंस मिलता है जहां पर अष्ट मंत्रियों की बात की गई, अष्ट अमात्य की बात की। 8 मिनिस्टर्स होने चाहिए कैबिनेट में। उस 8 मिनिस्टर के खाते क्या होंगे, उनके दायित्व क्या होंगे, किस प्रकार से वो अपना राजा को किस प्रकार से वो अपना मत देंगे। रियल डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, समाज के पूरे वर्ग का पार्टिसिपेशन था। चारों वर्ग के लोग बैठते थे सभा में, चारों वर्ग के लोग सुझाव देते थे, वो तय करते थे कि हमारा देश कैसे चलेगा। इवन इन दी राजतंत्र, जिसको फ्यूडलिज्म करके हमको बताया गया, गलत इतिहास हमको समझाया गया, उसमें भी रियल डेमोक्रेसी थी, विच वी लॉस्ट इन द नेम ऑफ दिस वेस्टमिंस्टर मॉडल। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में 50% वोट मिलने की आवश्यकता नहीं होती व्यक्ति को। समाज को तोड़ो और 18%, 20% वोट में भी हमारा प्रतिनिधि बन जाता है। We have lost the real democracy which was there before the Britishers came. और उस कारण से डिसेंट्रलाइज निर्णय होते थे, निर्णय व्यवस्था डिसेंट्रलाइज थी, अलग अलग जगह पर निर्णय होते थे, जो निर्णय होना बंद हो गया। नेक्स्ट, हमारा जो न्याय तंत्र था, नेक्स्ट हमारा जो न्याय तंत्र था, इट वॉज बिल्ट ऑन ट्रस्ट नॉट ऑन डाउट। आज हमको सिखाया जाता है, क्रिमिनल जस्टिस में सिखाया जाता है, एवरीथिंग हैज टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आज सारे के सारे कानून कोई बनाए जाते हैं। हमको जब ज्यूरिस्प्रूडेंस सिखाया गया और कानून की भाषा कैसे होनी चाहिए सिखाया गया। अभी हम एमओयू बना रहे थे, इस एमओयू की भाषा को जब लीगल डिपार्टमेंट के पास भेजा होगा, उस लीगल डिपार्टमेंट ने जांच करके देखा होगा, तो वो कहते हैं कि भाषा ऐसी लिखो कि जो निगेटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि निगेटिव एक्सक्लूसिव होता है, उसके 2 अर्थ नहीं निकल सकते। क्यों आशुतोष जी? ऐसा ही सिखाया जाता है। द होल जुडिशियल सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन मिसट्रस्ट, ऑन डाउट, जो कि भारत में न्यायिक व्यवस्था सारी विश्वास पर आधारित थी। मैगस्थेनिस आया था सिकंदर के समय, अलेक्जेंडर का, और भारत में प्रतिनिधि था मैगस्थेनिस। उसने भारत में घूम करके इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। उस इंडिका को पढ़िए जिसमें भारत का उसने वर्णन किया है। आपके भारतीय नॉलेज सिस्टम में उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। उस इंडिका में वो मैगस्थेनिस लिखता है कि भारत में लड़ाइयां नहीं होती थी, भारत में आपस में विवाद नहीं होते थे। वो कहता है न्यायालय खाली पड़े रहते थे, लेकिन क्योंकि लोग न्यायालय में जाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं थी, धर्म के आधार पर जीवन चलता था, सेल्फ डिसिप्लिन से जीवन चलता था। मैगस्थेनिस ने कहानी बताई, वो पूरा वहां से पश्चिम से आया था, पूरा गंगा का क्षेत्र पार करता करता आया और मगध में पाटलिपुत्र के पास, मतलब आज के पटना के पास, वहां पास में पटना से 10 मील दूर पर एक गांव में उसको पहला झगड़ा मिला मैगस्थेनिस को। तो मैंने जब इंडिका पढ़ा तो मेरे मन में आया, देखो मैगस्थेनिस को भी पहली लड़ाई बिहार में मिली। मैंने कहा बिहारियों का जवाब नहीं, मैगस्थेनिस के समय से फेमस है, पूरे भारत में कहीं लड़ाई नहीं मिली, बिहार में जाकर के मिल गई। लेकिन जब मैंने वो पढ़ी लड़ाई, तब मेरी आंखें खुल के रह गई कि ये विहार, बुद्ध का जहां विहार हुआ था, वो विहार कितना उन्नत था।
क्या इस देश की परंपराएं थी? मैगस्थेनिस कहता है लड़ाई क्या हो रही थी? दो किसानों के बीच में, दो खेती खरीदी एक ने दूसरे से, दो किसानों के बीच में विवाद हो रहा है। खेती बेचने वाले ने, खेती खरीदने वाले ने खेती खरीद ली। खरीदने वाले ने जब हल चलाया, तब हल चलाते समय उसको खेत के अंदर गोल्डन ऑर्नामेंट से, सोने के आभूषणों से भरा हुआ और मटका मिला। उसने जाकर के, जिसने खेती बेची थी उसको जाकर के दिया, ये तुम्हारे पूर्वजों का सोना है, तुम ले लो। बेचने वाला कहता है मैंने खेती बेच दी, अब इस पर मेरा अधिकार नहीं, तुम ले लो। खरीदने वाला कहता है मैंने केवल खेती का दाम दिया था, सोने का दाम नहीं दिया था, इसलिए ये मैं नहीं लूंगा। मैगस्थेनिस कहता है सड़क पर सोने के आभूषणों का भरा हुआ वो मटका रख करके वो दोनों किसान लड़ रहे थे, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। कल्पना कर सकते हैं आप? मात्र 2300 साल पहले इस देश में धर्म पर आधारित न्याय व्यवस्था थी। मामला न्यायालय में गया, न्यायमूर्तियों ने कहा हम व्यवस्था नहीं दे सकते, हमको कानून बनाना पड़ेगा। धर्म सभा बनी, उस धर्म सभा में अलग अलग प्रकार के ग्रंथों को देखा गया कि आपस्तंभ ने क्या कहा है, पाराशर ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, और फिर व्यवस्था दी गई कि भूमि में जो कुछ भी मिलेगा वो भूमि क्रय करने वाले का, खरीदने वाले का होगा। अब वो खरीदने वाले किसान को कहा गया आप ले जाओ, हमने व्यवस्था दे दी। वो कहता है धर्म रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, मैंने जब भूमि खरीदी थी तब ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इस पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। जब हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मैं स्वाध्याय कर रहा था, चर्चा कर रहा था, कार्यकर्ताओं ने पूछा ऐसा क्यों किया उन्होंने? मैंने कहा ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमसे ज्यादा अच्छी तरह से पता है। बिना ऊर्जा का व्यय किए आप यदि कंज्यूम करते हो, भोग करते हो, जिस पर आपका अधिकार नहीं, उसको यदि आप अपने पास ले जाते हो तो कहीं ना कहीं दूसरी ओर से वो ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ये उस किसान को पता था, मैंने पसीना नहीं बहाया उस सोने के लिए तो उस पर मेरा अधिकार नहीं। 2011 में मैं दिल्ली में था, एक रामावतार नाम का रिक्शे वाला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से गया हुआ, शाम को मेट्रो स्टेशन से अपने कार्यालय जाने के लिए 7 रुपया सवारी लगती थी, 7 रुपीज। चिल्लर नहीं थी, मैंने 10 का नोट दिया। नॉर्मली मैं रिक्शे वाले को 10 का नोट देकर के निकल जाता था, वापस मांगता ही नहीं था। मैं जानता हूं मेरा वजन इतना है कि कुर्सी टूट जाती है, तो रिक्शा वाले ने बेचारे ने ज्यादा मेहनत की है, तो 7 की जगह 10 दे दो, क्या फर्क पड़ता है। वो 10 रुपया दिया रामावतार को। रामावतार ने कहा नहीं बाबूजी केवल 7 रुपया। मैंने कहा चेंज नहीं है यार, रख ले। उसने कहा ऐसे कैसे रख लूं, मेरे मेहनत का 7 रुपया है, 7 तो 10 नहीं लूंगा। मैंने कहा मेरे पास 5 का सिक्का है, 10 का नोट है, 7 नहीं है, रख ले, मैं प्रेम से दे रहा हूं। वो कहता नहीं आप 5 दे दो, 2 कल दे देना। मैंने कहा वारे भाई तू मेरे 3 नहीं रख रहा, मैं तेरे 2 क्यों रख लूं, तू 10 रख ले, कल दे देना। मानने नहीं, लड़ाई हुई। वही मैगस्थेनिस वाली लड़ाई 2011 में मेरी और रामावतार की हुई, 3 रुपए के लिए। थोड़े देर बाद कार्यकर्ता को भेजा, वो चिल्लर लेकर के आए। तब तक मैंने रामावतार को पूछा कहाँ के रहने वाले हो। आज की आपकी परिभाषा में अनपढ़ अंगूठा छाप रामावतार उस दिन मुझे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दे करके गया। जब मैंने रामावतार को पूछा, मैं मेरे प्रेम से 3 रुपए तेरे को दे रहा था, तू मुझे लूट नहीं रहा था, तू मुझे चीट नहीं कर रहा था, तू मुझसे कपट नहीं कर रहा था, तू मुझसे छीन नहीं रहा था, मैं 3 रुपए तुझे दे रहा था, तू ले लेता तो क्या होता। रामावतार कहता है अधर्म का एक भी पैसा घर में ले जाऊंगा तो घर के संस्कारों का नाश हो जाएगा, मेरे घर में बीमारी रहेगी, बच्चे कहना नहीं मानेंगे, लड़की भाई। उसने धड़ 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 गिना दिए। उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता था रामावतार को। रिक्शा 7 रुपए का चलाया है तो 10 रुपया लूंगा तो 3 रुपए डॉक्टर को देने पड़ेंगे बीपी और डायबिटीज के लिए। हम इतने बड़े लिखे हुए पीएचडी, मैं अभी पिछले 10 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मैं पूछता हूं हायर एजुकेशन के टीचर्स को, 12 महीने की सैलरी मिलती है 7th पे कमीशन के द्वारा, फिर पेपर सेटिंग कब करते हो, उस 12 महीने के अलावा करते हो, इन्विजिलेशन उसके अलावा करते हो, टेबुलेशन उसके अलावा करते हो। जब 12 महीने के पूरे 30 दिन की सैलरी मिल गई तो इसका एक्स्ट्रा पैसा कैसे लेते हो। रामावतार को जो धर्म का अर्थतंत्र पता है, हमको पता नहीं। इसलिए ये धर्म है, नॉट रिलीजन। धर्म ये है
जहां पर आप अपने श्रम के अनुसार जीवन जीते। यू आर योर ओन गाइड। कोई और देख रहा है सीसीटीवी, इसलिए आप नियम का पालन नहीं करते। आपके अंदर का सीसीटीवी काम करता है और आप स्वयं की दृष्टि में नहीं गिरना चाहते, इसलिए आप रात को 12 बजे भी रेड लाइट पे रुकते हैं, क्योंकि नियम बना है तो मैं उसका पालन करूंगा। नियम तोड़ने से मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। यह सेल्फ डिसिप्लिन है जो हमारे न्याय तंत्र का आधार था, जो इस अंग्रेजों के अविश्वास के न्याय तंत्र में खत्म हो गया। भारत का अर्थतंत्र, एंगस मेडिसन ने विश्व के इतिहास, विश्व का आर्थिक इतिहास लिखा। 2004 में पुस्तक छपी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियल पर्सपेक्टिव। एंगस मेडिसन की किताब है, oecd.org नाम की वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसमें उसने बताया 15वीं शताब्दी तक विश्व का 66%, 46 to 66% ऑफ द जीडी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय भारत। 1947 में हमने वो इकोनॉमी नहीं ढूंढी कि जिसके कारण हम सारे दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग के हब थे। अभी कल हम नंबर 2 बन गए, बड़ी खुशी मना रहे, चाइना के बाद नंबर 2 बन गए। यूएस को मैन्युफैक्चरिंग में हमने पीछे छोड़ दिया। मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी सफलता हुई कि भारत नंबर 2 बन गया। लेकिन 2000 वर्ष का जो इतिहास एंगस मेडिसन ने लिखा है, उसमें 1500 वर्ष तक वी वर नंबर 1, नॉट जस्ट नंबर 1, वी वर कंट्रीब्यूटिंग द 2/3 ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आज वो कहां चला गया? क्योंकि हम त्याग पर नहीं, भोग पर आधारित। मैंने फोटो जानबूझ करके आरबीआई के हेडक्वार्टर की लगाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और सामने जो 2 मूर्तियां दिख रही है ना, वो कुबेर की मूर्ति है। कुबेर की पत्थर की मूर्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने लगाई है ताकि कुबेर नाम के 2 यक्ष हमारे राष्ट्र की संपदा की रक्षा करे। लेकिन यक्ष नहीं रक्षा करते, मनुष्य रक्षा करते। जब राष्ट्र लेने की जगह, जब राष्ट्र के नागरिक लेने की जगह देने का विचार करते हैं, जब रात को सोने से पहले स्वयं को पूछते हैं कि मैंने दिया क्या, जो जॉन एफ कैनेडी ने अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में कहा था राष्ट्रपति बनने के बाद में, डू नॉट आस्क व्हाट अमेरिका शैल गिव यू, बट आस्क व्हाट यू शैल गिव अमेरिका। वो जिस दिन इस राष्ट्र का वो आधार है, इसलिए वहां पर एक शब्द लिखा है, ग्रॉस नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। कंजम्पशन के आधार पर नहीं अर्थतंत्र चलेगा। दिया क्या? एक राष्ट्र के रूप में हमने दिया क्या? जिस समय कोरोना आया, कोविड आया, वुहान वायरस भारत में आया, उस समय हमारे पास में मास्क बनाने की फैक्ट्रियां नहीं थी। उस समय हम एक पीपीई किट नहीं बनाते थे, सारा विदेशों से लाते थे। और आज 180 देशों को पीपीई किट और मास्क हम एक्सपोर्ट करने वाले बन गए। ये भारत की उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप, आत्मनिर्भर उद्यम के आधार पर भारत ने दुनिया पर आज वो अर्थतंत्र कहां चला गया? क्योंकि हम कर्जे की इकोनॉमी में लोगों के साथ में और कंपटीशन कर रहे हैं, कौन कितना ज्यादा कर्जा लेगा। क्योंकि दुनिया का नंबर 1 देश अमेरिका नंबर 1 कर्जदार है। अमेरिका का जीडीपी $22 ट्रिलियन है, $22 ट्रिलियन, 22 खरब डॉलर का उसका जीडीपी है। लेकिन आप यूएस नेशनल डेट गूगल कीजिए, अमेरिका का राष्ट्रीय कर्जा कितना है, अमेरिका का ऋण कितना है, तो आपको पता चलेगा और आश्चर्य लगेगा। 28 खरब डॉलर का कर्जा है, 28 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा। 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पे 28 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। जीडीपी बढ़ता है कर्जा लेने से, इसलिए नंबर 1 जीडीपी बन गया देश कर्जा लेने वाला। भारत में ये स्थिति नहीं थी, हम उत्पादन केंद्रित थे। नेक्स्ट, ऐसे हमारे स्वयं के तंत्र थे। हमारा जो उपासना का तंत्र था, वो प्रत्येक की उपासना का सम्मान करता था, सच्चे अर्थ में सर्वपंथ समभाव, यह हमारी बात थी। हम सबको स्वीकार करते थे। जब पारसी भारत में आए सूरत में, तो पर्शियन लोगों ने कहा कि हमको हमारे पूजा पद्धति से चलना है, तो हमारे वहां के राजा ने पर्शियन लोगों को उनके मंदिर बना करके दिए। जब कोड़िकोड में, जिसको आजकल कालीकट कहते हैं अंग्रेजों के प्रभाव में, उस कोड़िकोड में जब पहुंचे, ये एंगस मेडिसन का चार्ट मैंने दिखाया बीच में, इसमें भारत की क्या समृद्धि थी। ये यहां से शुरू होता है, ये भारत है, ब्राउन वाला चाइना है, वो बीच वाला भारत है। दिस वाज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू 2000 ईयर्स। ये एंगस मेडिसन का चार्ट है, उसकी उसी पुस्तक में से जिसका पुस्तक मैंने किया। नेक्स्ट, हमने
सर्व पंथों का समादर करना शुरू किया। इस देश में हमेशा से रहा। पारसी इस देश में आए तो उनका हमने स्वीकार किया। कोഴിकोड में जब पहले क्रिश्चियन पहुंचे तो उनको गिरजाघर कालीकट के राजा समुद्री नाम के राजा ने बना करके दिया, पहला चर्च। और जब कई दिनों तक, 6 महीने तक प्रवचन करने के बाद कोई कन्वर्ट नहीं हुआ तो राजाज्ञा से 25 लोगों को कन्वर्ट किया गया था। यह भारत का सर्वपंथ समादर था। आज हम उसको भूल गए क्योंकि आज हम तुष्टीकरण में चले गए और विविधता समाप्त हो गई। मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से अच्छा है कहने वाले पंथों ने हमारे देश के ऊपर इस अंग्रेजों के समय से राज करना शुरू किया। नेक्स्ट, और इस सबसे ये मैंने जानबूझकर सर्वपंथ समादर में ये फोटो लगाया। ये फोटो विश्व की सबसे बड़ी लेबोरेटरी का फोटो है, सर्न लेबोरेटरी, CERN, सर्न लेबोरेटरी, जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बॉर्डर पर है, जहां पर हिगिन बोसान वाला जो पार्टिकल कोलाइडर बना था वो यहीं पर बना हुआ है। इंटरनेट की खोज इन्होंने की। सर्न की वेबसाइट पे जाओगे तो वो लिखा हुआ मिलेगा आपको, यू आर हियर बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज वी इन्वेंटेड WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। उस सर्न के बाहर ये नटराज की मूर्ति लगी है और उसके नीचे लिखा है कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। उत्पत्ति के कैसी सृष्टि हुई, उस सृष्टि के रहस्य को खोजने का प्रयत्न करते समय वैज्ञानिक नटराज के नृत्य को देखते हैं। आज यूरोप अपने को मान रहा है और हमने कितनों ने नटराज के बारे में अध्ययन करने का शुरू किया। नेक्स्ट, इस सब का जो सबसे बड़ा असर हुआ वो असर हुआ हमारा स्वावलंबी समाज परावलंबी हो गया। ये वारली पेंटिंग मैंने यहां पर लगी है, अखंड मंडल का। मैं ही बड़ा होकर के परिवार बनता हूं, मेरा ही मन बड़ा होता है तो परिवार बनता है, परिवार ही बड़ा होकर के समाज बनता है, समाज ही बड़ा होकर के राष्ट्र बनता है। ये जो अखंड मंडलाकार समाज की रचना थी, जो परस्पर भावयंत था, एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंस था, एक दूसरे को सहयोग करने वाला समाज था, अंग्रेजों ने हमको आदत लगा दी कि हर बात के लिए सरकार की तरफ देखो। हमने अपने समाज का पोषण करने की जगह हर बात के लिए सरकार को मांगने लगे। इसलिए पिछले 150 वर्षों में ये जो समाज की स्वायत्तता है, ये समाज का स्वावलंबन है, ये समाप्त हो गया, जिसको आज स्वतंत्रता के रूप में स्वाधीनता के 75 वर्ष में हमको फिर से लागू करना है। नेक्स्ट, यह हमारा लक्ष्य है। इस स्वाधीन भारत को फिर से स्वतंत्र करने के लिए मुक्ति का मार्ग शिक्षा के मार्ग में से जाता है। और वो शिक्षा जब स्वयं मुक्त होगी, सा विद्याया विमुक्त, ये शिक्षा का मंत्र है। भारतीय शिक्षण मंडल का लोगो आप देख रहे हैं हर स्लाइड में, उस लोगो में लिखा है सा विद्याया विमुक्त, एजुकेशन दैट लिबरेट्स, बट टुडे दैट एजुकेशन नीड्स टू बी लिबरेटेड। और इसलिए उस शिक्षा को मुक्त करने वाली शिक्षा नीति, उसी का चित्र मैंने यहां पर लगाया शिक्षा नीति के कवर पेज का। वो डीकॉलोनाइजिंग ऑफ माइंड, वो आज हम सब लोगों का लक्ष्य है जो यहां पर है। कहां क्या क्या परिवर्तन करना है शिक्षा में? 4 स्तरों पर परिवर्तन करना है। शिक्षा के उद्देश्य हमको समग्र बनाने पड़ेंगे, होलिस्टिक करने पड़ेंगे। सा विद्या या विमुक्त की जगह सा विद्या या नियुक्त हो गया। कल मैं NIT अगरतला में था, वो मेरे को बता रहे थे 100% प्लेसमेंट। हमारे विद्यार्थी को 1.2 करोड़ का पैकेज मिल गया। मैंने कहा इंजीनियर बनाते हो कि नौकर बनाते हो? कितने नए इंजन बनाए, कितनी नई खोज की। सा विद्या या विमुक्त, हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या? जेब भरने वाली, पेट भरने वाली, अरे वो तो छोटी सी चींटी भी अपना पेट भर लेती है। गोबर में बिलबिलाते कीड़े भी भूखे नहीं मरते और सड़क पर चलने वाला कुत्ता भी भूखा नहीं मरता। यदि केवल पेट भरने के लिए विद्या प्राप्त की तो विद्या का उद्देश्य नहीं। इसलिए विद्या का समग्र उद्देश्य, विद्या मुक्त करी, विद्या युक्त करी और फिर विद्या अर्थ करी। क्वालिफाइड व्यक्ति को बनने वाली ऐसी समग्र और एकात्म और विद्या की परिभाषा, उसका उद्देश्य बढ़ाना पड़ेगा। उसकी पॉलिसी को हमको बढ़ाना पड़ेगा। हमारी उसकी पॉलिसी फ्लेक्सिबल रहनी पड़ेगी, स्वायत्त रखनी पड़ेगी। और फिर तीसरे स्तर पर उसका जो पाठ्य वस्तु है, उसका जो कंटेंट है, सिलेबस है, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए नीचे अलग से नीले में दिखाया है, और वो चौथा है हमारी शिक्षा की पेडागोजी बदलनी पड़ेगी। जिस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को लेकर के सारा विश्व चल रहा है, आज उसके ऊपर भारत को प्रश्न करने पड़ेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा को तैतरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली पर अनुसंधान करके और सारे विश्व का मार्गदर्शन करने वाली शिक्षा विश्व को देने की आवश्यकता है। इसलिए पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब हमने गुरुकुल प्रकल्प शुरू किया तब लोगों ने पूछा क्या आप भारत में फिर से गुरुकुल खोलना चाहते हैं? मैंने कहा वो तो होंगे ही, गुरुकुल तो आज भी 10,000 से अधिक चल रहे हैं और गुरुकुल तो चलेंगे ही इस देश में, वो तो मरते नहीं है। किंतु हमारी इच्छा वो नहीं है। हमारी इच्छा ये है कि IIT गुरुकुल बनना चाहिए।
और आईआईटी गुरुकुल बनना चाहिए का अर्थ झोपड़े बनाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये झोपड़े की आइकोनोग्राफी पता नहीं कहां से आ गई, हमारे गुरुकुल झोपड़े में नहीं थे। नालंदा का जो गुरुकुल था वो 6 मंजिला इमारत में था उस समय, 6ठी शताब्दी में। 12वीं शताब्दी तक हमारा आर्किटेक्चर ऐसा था कि हम 6 मंजिला इमारतें बनाते थे। इसलिए आईआईटी को गुरुकुल बनाने का अर्थ यहाँ झोपड़े बनाना नहीं है और टीचर को भगवा पहनाना भी नहीं है। हमारे गुरुकुलों के गुरु भगवा नहीं पहनते थे। वो बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देख करके मत सोचिए। हमारे सारे के सारे गुरु गृहस्थ थे, मेरे जैसे ब्रह्मचारी भी नहीं थे। याज्ञवल्क्य की तो 2 पत्नियां थी और उस याज्ञवल्क्य को टीवी पर सन्यासी दिखा देते। हमको इस पर अनुसंधान करना पड़ेगा। गुरुकुल बनाने का अर्थ है पैडागोजी ऑफ गुरुकुल हैज टू कम। शिक्षण पद्धति गुरुकुल की आनी पड़ेगी। दैट फ्लेक्सिबल, मोस्ट साइंटिफिक टेक्सोनॉमी, दैट मोस्ट साइंटिफिक epistemology, that most scientific ontology has to come back, and that is gurukulization of education. वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। इसलिए तब शिक्षा मुक्त होगी जब हम पद्धति बदलेंगे। मैंने जो फोटो लगाई है तस्वीर, वो तस्वीर अमेरिका में सरस्वती की मूर्ति है। 2013 में जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब अमेरिका को किसी एक देश ने यह सरस्वती की मूर्ति गिफ्ट दी, भारत ने नहीं दी। 100 अरब हिंदू जिस देश में वसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा करते धूमधाम से, उस भारत ने यह सरस्वती नहीं दी है। यह सरस्वती, नीचे 3 बच्चे बैठे, उसमें से एक बच्चे के घुंघराले बाल है, क्योंकि ओबामा का प्रतीक दिखाने के लिए वो घुंघराले बाल है, पहला वाला जो बच्चा है। इसलिए ओबामा को यह मूर्ति सरस्वती की उस देश ने दी थी जिस देश में दुनिया की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या रहती है। 35 करोड़ मुस्लिम जिस देश में रहते, दुनिया में इतने मुस्लिम किसी दूसरे देश में नहीं रहते। नंबर 2 बांग्लादेश है, नंबर 3 भारत। नंबर 1 पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन इंडोनेशिया। उस इंडोनेशिया ने मूर्ति वॉशिंगटन में ओबामा को गिफ्ट की। यही मूर्ति जकार्ता यूनिवर्सिटी में भी है, और जकार्ता यूनिवर्सिटी का मुसलमान कुलपति रोज अपने ऑफिस में बैठने से पहले इस सरस्वती को पुष्प चढ़ाता है। मैं प्रश्न पूछता हूं, आईआईटी में कब मूर्तियां लगेंगी सरस्वती की? जकार्ता में लग सकती है, मुस्लिम देश में लग सकती है, भारत में नहीं लग सकती। भारत में हम बिना सरस्वती को लग के दीप प्रज्वलन करेंगे मंच के ऊपर, सरस्वती की मूर्ति नहीं रख सकते, क्योंकि हम सेक्युलर हो गए। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है भाई? 35 करोड़ मुसलमान जिस देश में रहते हैं वो गरुड़ा एयरवेज चला सकता है, वो गणेश जी की सबसे बड़ी मूर्ति लगा सकता है, वो सरस्वती की मूर्ति लगा सकता है, और भारत नहीं लगा सकता। इसलिए हमको इस बात पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ करके वो मूर्ति मैंने लगाई। हमने इसका रेप्लिका बना लिया। पिछले साल मार्च महीने में भोपाल में जो हमारा बहुत बड़ा एजुविजन नाम से प्रदर्शनी लगी थी, उसमें यही मूर्ति हमने भारत में साकार कर दी। उसका मोल्ड बना लिया है। आप ऐसी की ऐसी मूर्ति यहाँ लगाना चाहते तो आरे फारे उसका भी सप्लाई आपको कर सकता है। नेक्स्ट, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, सरस्वती की मार्केटिंग कर रहा हूँ, मूर्ति की मार्केटिंग नहीं कर रहा। सरस्वती कहीं से भी लाई है। हमारे आईजेएनटीयू में कट्टीमनी जी थे, उनके वहाँ मैंने भाषण दिया। उससे मैं एएमयू के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जफरुद्दीन शाह वाइस चांसलर मंच पे बैठे थे। बाद में चाय पीते समय मेरे को कहे, मुकुल जी मेरा तो स्वप्न उस समय साकार होगा जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सरस्वती की मूर्ति लगेगी। ये जफरुद्दीन शाह के शब्द है, जो नासिरुद्दीन शाह के बड़े भाई ये जनरल थे भारतीय आर्मी में, और एएमयू के इससे पहले वीसी थे यहाँ से पहले। उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की थी। मैंने कहा अभी मत कीजिए, अभी दिक्कत हो जाएगी, कुछ दिन बात करेंगे, ये समाज स्वीकार कर लेगा। ये सब कब होगा? स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर कब जाएंगे? भाषणों से नहीं जाएंगे। मैं चाहे जितना गला फाड़ फाड़ करके बोल दूं और चाहे जितनी तालियां आप बजा दे, भारत स्वतंत्र नहीं होगा। भारत स्वतंत्र होगा तो तप से होगा। यह देश विश्वगुरु बना था ऋषियों की तपस्या से। आज हम में से एक एक को ऋषि बनना पड़ेगा। हमको भी तप करना पड़ेगा, हमको भी देना पड़ेगा देश के लिए, हमको भी कुछ करना पड़ेगा देश के लिए। केवल स्वयं के लिए जीने से, स्वार्थ के लिए जीने से नहीं होता। बद्री साहब टुलदारिया नाम के एक अल्मोड़ा के लेखक थे, उन्होंने दैशिक शास्त्र नाम की पुस्तक लिखी है। स्वामी विवेकानंद का उनको आशीर्वाद मिला था जब वो अल्मोड़ा गए थे, तब 20 वर्ष की उनकी आयु थी। 1920 में उनकी पहला लेख जो छपा था, उस लेख का शीर्षक था स्वार्थ सबसे बड़ा देशद्रोह।
तब लोकमान्य तिलक ने उनकी पीठ थपथपाई और उनको कहा इस पर पूरी पुस्तक लिख दो। वो वैदेशिक शास्त्र पुस्तक उन्होंने लिखी। 1921 में जब तक पुस्तक तैयार हुई तब तक लोकमान्य तिलक चले गए थे, इसलिए लोकमान्य तिलक उसको छाप नहीं सके। बाद में रामकृष्ण मठ के कुछ लोगों ने मिलकर के उसको छपाया था। ये तप करना पड़ेगा, तप यानी रिसर्च करना पड़ेगा, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का रिसर्च करना पड़ेगा। देयर आर इन्यूमरेबल टेक्स्ट्स अवेलेबल, हर विषय पर जो जो 5 तंत्र बदलने की बात की है सबके बारे में आज बहुत बड़ी ज्ञान परंपरा हमारे पास उपलब्ध है। और IIT गोरखपुर ने वो सुपर साइट बनाई जिस सुपर साइट से इंटरनेट पे उपलब्ध करा दिया। बाद में IJNCA ने हेरिटेज पोर्टल बना दिया, उस हेरिटेज पोर्टल से भी हमारा सारा वैदिक लिटरेचर और सब आ गया। आर्य भारत में हमने सबसे बड़ा नॉलेज से रिसर्च सेंटर खड़ा करना प्रारंभ किया और सारे भारत में इस प्रकार की जो ज्ञान संपदा है उसको एकत्रित कर रहे हैं। आज हमारे पास 1 लाख रेयर बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स डिजिटल फॉर्मेट में आर्य भारत के नॉलेज रिसोर्स सेंटर में उपलब्ध है। इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, उससे बड़ा रिसर्च करना पड़ेगा केस स्टडी के रूप में, क्योंकि जितना ग्रंथों में है उससे अधिक हमारे समाज में है। आज भी हमारे समाज में ऐसी प्रैक्टिसेस है जो प्रैक्टिसेस हमको बहुत बड़ा नॉलेज दे सकती है। उसका वैलिडेशन, साइंटिफिक वैलिडेशन करने की आवश्यकता है, जिसको हम जुगाड़ कहते हैं, जिसको हम इनोवेशन, जो ग्रासरूट इनोवेशन है उसका वैलिडेशन साइंटिफिक करने की आवश्यकता है। कौन करेगा? ये तप करने की आवश्यकता है। और इस सबसे बड़ी बात, हमको नए नए मॉडल क्रिएट करने पड़ेंगे। इसलिए वो जो पहले अर्थतंत्र वाले इस पर GNC लिखा था, ग्रॉस नेशनल कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मूल्य मापन करने का एक नया मॉडल हमने दिया। मैंने उसके ऊपर पेपर लिखा, इकोनॉमिक्स मेरा विषय नहीं था लेकिन मैंने अध्ययन किया। मैंने कहा सारे विश्व को एक ऐसा मॉडल दिया जा सकता है जिससे विश्व सर्वे भवन्तु सुखिनः हो। ग्रोथ का एक ऐसा पैरामीटर दिया जा सकता है जिस पैरामीटर से चलने से सारे देश भी विकसित होंगे, मानवता विकसित होंगी एंड अ बेनिवोलेंट सोसाइटी विल बी क्रिएटेड। ऐसे मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट में क्रिएट करने पड़ेंगे, एनवायरमेंटल साइंसेस में क्रिएट करने पड़ेंगे, विभिन्न मल्टीडिसिप्लिनरी साइंसेस में मॉडल क्रिएट करने पड़ेंगे। और उस सब के लिए हमको स्वाध्याय करना पड़ेगा। मैं भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाता हूं, प्रतिदिन कम से कम 10 पृष्ठ पढ़ो और कम से कम 1 पृष्ठ लिखो। मैं भी लिखता हूं। साल में, महीने में 25 दिन मेरा प्रवास होता है। साल में 2 बार पूरे भारत माता की परिक्रमा कर लेता हूं। साल में लाखों किलोमीटर मेरा प्रवास हो जाता है। सतत घूमते ही रहता हूं। अभी मैं मेरे जो केंद्र स्थान है नागपुर, वहां से निकले हुए मेरे को 8 दिन हो गए और अभी और 4 दिन नहीं पहुंचने वाला, और पहुंचने के बाद 2 दिन बाद फिर निकल जाऊंगा। इतना प्रवास करते हुए भी मेरे परिचय में बताया, पुस्तकें लिखी है, 3000 से ज्यादा मेरे लेख छपे हैं, क्योंकि मैं प्रतिदिन 1 पृष्ठ लिखे बिना सोता नहीं। 2008 से मेरा ये संकल्प है। स्वाध्याय, पढ़ना और लिखना। पहले तो इतनी मोटी मोटी किताबें कैरी करनी पड़ती थी प्रवास में, लिखने के लिए पैड और पेन लेके जाना पड़ता था। अब तो मोबाइल में लिख सकते हैं, मोबाइल में पढ़ सकते हैं। इतनी सुविधा होते हुए भी यदि हमारा स्वाध्याय कम पड़ रहा है तो इसका मतलब हमारा तप चला गया। यह राष्ट्र ऋषित्व को खो चुका, इसलिए स्वाधीन हो गया किंतु स्वतंत्र नहीं हुआ। इसलिए प्लेगरिज्म के बारे में भारत के ऊपर उंगलियां उठती है। आप जब इंटरनेशनल जर्नल में आपका पेपर भेजते हैं तो भारत से आया हुआ पेपर 4 बार जांचा जाता था प्लेगरिज्म के लिए। जो देश दुनिया में निष्ठा, ईमानदारी के लिए जाना जाता था, वो आज प्लेगरिज्म के लिए क्यों जाना जाने लगा? क्योंकि हमारे अंदर का CCTV गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमारा स्वाध्याय कमजोर हो गया, हमारा तप कमजोर हो गया। और ये श्रवण मनन निधिध्यासन, आज तो पहले श्रुति चलती थी, वेद काल में किताबें नहीं थी, गुरु बोलता था, शिष्य सुनते थे। उसको सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कहा जाता था जो श्रुत ज्ञान था। बाद में लिखित आया, पुस्तकें आई, अब फिर डिजिटल हो गया, और अब नया जमाना, या जो बच्चे बैठे हैं वो तो ऑडियो बुक वाले हैं। तो मैं कहता हूं ये फिर वैदिक ऋषि हो गए, फिर श्रुति में आ गए। क्योंकि श्रवण भी उतना ही महत्वपूर्ण स्वाध्याय का साधन है। श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और उसका एप्लीकेशन कीजिए, निधिध्यासन कीजिए, अप्लाई इट इन योर लाइफ। ये स्वाध्याय पूर्ण होगा। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है संगठित होने की आवश्यकता है। वी शुड ऑल कम टुगेदर। भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से ये आह्वान करते हुए मैं मेरी बात को पूरा कर रहा हूं। और हमने बहुत सिंपल सा तरीका बनाया, मंडल बनाइए, साथ में आइए, 7 दिन इकट्ठा आइए। मंडल यानी सर्कल, एक सर्कल में बैठिए, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, और 1 घंटे तक किसी अच्छे विषय पर स्वाध्याय कीजिए, स्टडी कीजिए। 1 घंटा केवल चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी, नो निगेटिव थॉट्स, नो टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो चिंता,
बंगाली में चिंता का अर्थ भी विचार करना होता है, लेकिन संस्कृत में चिंता का अर्थ होता है स्ट्रेस, एंजाइटी। जब आप प्रॉब्लम की बात करते हैं तब एंजाइटी होती है, जब आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तब चिंतन होता है, देन यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग, कुछ नया निकलता है। इस मंडल में वो साथ में आकर के करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, यह आह्वान आपके सामने कर रहा हूं। नेक्स्ट, यह भारतीय शिक्षण मंडल की अनेक प्रकार के प्रकल्प है, आप बाद में जानकारी ले सकते हैं। हमारे ऐसे समर्पित कार्यकर्ता आपके बीच में बैठे जिनका नाम पहले बैनर पे लगा था, डॉक्टर अंबाशंकर वाजपेयी यहाँ पर बैठे। जेएनयू से पीएचडी करने के बाद 2017 में पिछले 5 वर्षों से अपना जीवन भारत माता को समर्पित कर दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा जीवन समर्पित करने वाले लोग हैं। अभिजीत सिंह यहाँ पर बैठे, उन्होंने पिछले 2 वर्षों से अपने जीवन के 2 वर्ष में देश को दूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ इजराइल में हर व्यक्ति सैनिक होता है क्योंकि प्रत्येक को 2 साल का मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी है। इसलिए जब मोसाद के लोग भारत के आईबी के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, तब हॉस्टेज सिचुएशन में क्या करते हैं ऐसा प्रश्न पूछा। उस समय वो भारत का जो कंधार में हवाई जहाज का हॉस्टेज सिचुएशन हुई थी और 3 आतंकवादियों को छोड़ा था, उसके बाद मोसाद के लोग आए थे ट्रेनिंग देने के लिए। हमारे सेना के और आईबी के लोग बैठे थे, उन्होंने इजराइल वालों को पूछा, मोसाद वालों को पूछा कि जब हॉस्टेज सिचुएशन होती है, जब आतंकवादी कुछ लोगों को बंदी बना लेते हैं और उनकी जान के बदले आपके साथ निगोशिएट करते हैं, हाउ डू यू निगोशिएट इन द हॉस्टेज सिचुएशन। उस मोसाद के ट्रेनर ने उल्टा प्रश्न पूछा सेना के लोगों को, यदि आप सेना का कोई जवान हॉस्टेज ले लिया जाए तो आप क्या करोगे। तो सेना के जवानों ने उत्तर दिया, हम तो देश पर मरने के लिए तो आए, हम हॉस्टेज बने तो कोई निगोशिएशन नहीं होगा। हमको तो ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके किसी साथी के बंदूक की नोक पर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो पहले अपने साथी को गोली मारो, हम तो मरने के लिए तैयार है। मोसाद के ट्रेनर ने बताया, इन इजराइल एवरीबडी इज सोल्जर सो वी डोंट निगोशिएट। हमारा प्रत्येक नागरिक सैनिक है क्योंकि उनको 2 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। सिंगापुर में 2 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, प्रत्येक व्यक्ति को मिलिट्री ट्रेनिंग दे। भारत में संभव नहीं है, 135 करोड़ में जहां 35 करोड़ से ऊपर युवा है, सबको ट्रेनिंग देने की सेना के पास इतने रिसोर्सेस नहीं। लेकिन क्या हम अपने जीवन में तय नहीं कर सकते कि मेरी पढ़ाई के बाद 2 साल मैं अपने देश के लिए दूंगा, 2 साल मेरे स्वयं के लिए नहीं होंगे। ये अंबाशंकर और ये अभिजीत जैसे लोग उसका उदाहरण है। मैंने 1990 में एलएलबी पूरा करने के बाद में मेरे माता पिता के भी स्वप्न होंगे, वो तो गरीबी से ऊपर उठे थे और इतना अच्छा मैं वक्ता था तो उनको लगा था सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेगा तो कितने पैसे कमाएगा। मैंने मेरी माँ को जाके बताया, अपराधियों की वकालत करके जेब भरने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। माँ ने पूछा क्या करेगा, मैंने कहा मैं मेरे भारत माता की वकालत करूंगा, मेरा जीवन भारत माता को समर्पित करूंगा। पिछले 32 वर्षों से 24 घंटे 365 दिन भारत माता को अर्पित किए हैं। और इसलिए आपके सामने ये जो दिखता है ना, जॉय सर को बड़ा लग रहा था कि कुछ लग गया क्या, कुछ नहीं लगता सर, भारत माता चिंता करती है, गिरने से भी कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये जीवन भारत माता के लिए समर्पित है। इस शरीर को कुछ होगा तो भारत माता का नुकसान होगा, वो कैसे नुकसान होने देगी। मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, आप भी दीजिए, जीवन का समय दीजिए, 2 साल दीजिए, 4 साल दीजिए, 5 साल दीजिए। नहीं दे सकते प्रतिदिन 1 घंटा तो दे सकते हैं, ऐसा 1 घंटा दीजिए भारतीय शिक्षण मंडल के साथ। नेक्स्ट, जुड़िए, शिक्षा क्षेत्र में जुड़िए, शिक्षा क्षेत्र को बदलने के लिए जुड़िए, क्योंकि जब तक मानसिक दासता नहीं जाएगी पूरा भारत स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वाधीन हो गया, स्वतंत्र करना है तो ये सारे काम करने पड़ेंगे। इसलिए जो लोग जीवन में 2 साल 4 साल नहीं समर्पित कर सकते, वो कुछ समय देने के लिए सदस्य बन जाए, कुछ पत्रिकाओं को समर्पित करे, कुछ स्पॉन्सरशिप करे, कुछ तो योगदान राष्ट्र के लिए करे। और ऐसा यदि आप करना चाहते हो तो नेक्स्ट, यह संपर्क सूत्र है जिनसे आप संपर्क कर सकते हो। ऊपर मेरा भी संपर्क दिया है, नीचे जो जिन 2 लोगों को समर्पित जीवन देने वाले आपके बीच के कार्यकर्ता है उनके भी संपर्क सूत्र दिए हैं। आप यदि जुड़ना चाहते तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जितने लोग समर्पित होंगे, जितने लोग जितना अधिक समय राष्ट्र के लिए देंगे, उतने जल्दी भारत माता स्वतंत्र होकर के सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगी और सर्वे भवन्तु सुखिना का ऋषियों का स्वप्न साकार होगा। जय हिंद, जय भारत। I think there are no words to explain what we just heard in the last 1 hour. It is a churning, it has been a samudra manthana. And obviously the manthana in the initial phases, the visha, the vicious portions normally come out. But if you are patient, if you are pure, if you are persevering,
in the words of Swami Vivekananda, then slowly the ambrosia, the amrita comes out. I think to this brilliant, more than brilliant deliberation, we have to give a Guru Dakshina, and we have a very learned man amongst us, Professor Ashish Kumar Dandapat from Hijli School. Yeah, please come. Hijli College, please come. So I'll request Mukul Kanitkar ji to kindly come and grace Ashish ji. Yeah. A teacher gracing another teacher. Yeah. And I also request, because IIT has produced a wonderful magic cup. One more. And I'll request Director Sir to actually give the magic cup to all our three dignitaries. Let us give one big round of applause again to Mukulji. Yes, let us give a standing ovation. I think this has been a day of changing our minds, changing the way we think, and most important of all, for the West, it is an invention, but for Bharat, it is a recovery, it is a resuscitation, it is a resurgence, it is a revival of what we already had, but in an absolutely modern and contemporary framework, which is Bharatiya knowledge systems. I think the entire fraternity of IIT Kharagpur, all esteemed professors are here, Professor Desai is here, others are here. I think this is really a great day, a day of great delight, a charge, an electrical arc, which has stirred our mind, body, and soul, and opened up a window of eternal sunlight which will surge in the years and the days to come. Thank you so much, sir, to be with us. And we hope that this partnership between Resurgence Foundation and IIT Kharagpur at the associational level, and a further partnership between individual to individual, and a more detailed and in-depth partnership between the heart of one person on this side with the heart of person on the other side, will be the ways and the means for the years and the months and the days to come. Thank you so much, sir. Namaskar. Thank you all for coming. Thank you so much.